Hi guys, welcome to Prep IAS. This is 3 month free crash course for UPSC Prelims 2021. ठीक है, 2021 के लिए प्रीलिम्स का आपका फ्री क्रैश कोर्स है जो बेसिकली 17 मार्च को आपका स्टार्ट हुआ था और ये 20 जून तक चलेगा आपका। ठीक है, 27 जून को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इस कोर्स में बेसिकली हम कॉम्प्रिहेंसिवली यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली और कंप्लीटली प्रिपेयर करवा रहे हैं आप लोगों को। देन इसके साथ साथ देयर विल बी 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट विल बी आल्सो देयर। ये सब लोग अटेंड कर लेना प्लीज, ऑल ऑफ यू अटेंड दीज टेस्ट बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन again the whole course is covered by the very experienced faculties who have experience of 3 to 4 even up to 5 years. Along with that they have a good experience in prelims and mains examination and also in the interview. So basically they know what to teach and what not to teach, what is important and what is not important, because understanding that prelim syllabus is a very large syllabus, one cannot study the complete syllabus. So that is why expert guidance is extremely essential, right? Then again from along with the static portion we are also covering the dynamic portion for prelims exam, because we know that current affairs are very important from last 2 years. If you have seen the paper of last 2 years, you must have seen that the current affairs are being asked in some different formats. Then we have study material and notes available on Telegram channel also. Then we have every Sunday we have a doubt clearing session in which we basically ensure that the topics which we are teaching students get clarity on this, and if in any case students can post their doubt with the help of Google form attached in the description of the video, right? So you guys can use this Google form to post your doubt. Then we have CSET also included in this. CSET is also included in this, right? CSET is very important and you need 33% marks to qualify for mains examination, right? So let's begin with our lecture number 14. सो लेक्चर नंबर 14 जैसे कि आप लोगों ने शेड्यूल में देखा होगा, इट इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो मेनी ऑफ यू हैव लिसन दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट इन द सिलेबस. नहीं, ऐसा नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन द सिलेबस बट इट इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सिलेबस. Larger part is macroeconomics. So we have questions in 2016, we have question in 2016, 2017 and 2019 which is from microeconomics, so microeconomics equally become important for the prelims examination. Do not skip this topic, and whatever I am teaching in the lecture is more than enough for you guys to study. Along with this lecture ke sath you also study the study notes with that I will be posting on the Prep IAS channel on Telegram. These two are more than enough for your microeconomics topic. You don't need to refer any book, you do not need to refer any coaching study material. Just attend the lecture and focus on the study notes, right? So starting with microeconomics, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पे फोकस करते हैं. वी फोकस ऑन द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इनकम ऑफ अ पर्सन, output of a firm, price of a category of product. Like if I say that I am only focusing on agriculture, in fact inside the agriculture I am only focusing on the wheat, right? I am only focusing on the prices of wheat, right? So मैं एक specific category of product की category पे focus कर रहा हूँ. So this is known as microeconomics. While in macroeconomics it is not wheat category, it is the whole agriculture sector. Then we have industry sector. I do not talk about here. मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी कोल इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कोल इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, या फिर आपकी पावर इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, या फिर आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा. मैं यहाँ पे कंप्लीट इंडस्ट्री सेक्टर को एक साथ इनका एग्रीगेट लूंगा और इन तीनों सेक्टर को मिला के आपका दैट इज आपका सर्विस सेक्टर. ठीक है, जो हमारा जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी नोन एज द जीडीपी, राइट? दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट? और उसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से मेरे को आप लोग बताओ नेशनल इनकम क्या होती है. और दिस नेशनल इनकम ऑप्शंस हैं आपके,
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट बेसिक प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये दो ऑप्शन यहां लिख रहा हूं। व्हाट इज एनआई? पहला ऑप्शन है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट बेसिक प्राइस, थर्ड है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप लोग मेरे को आंसर बताओ नेशनल इनकम क्या होती है। इन चारों में से जो ऑप्शन सही हो वो आप लोग बताना। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा इंडिविजुअल आर्थिक यूनिट, ये क्या बोलते हैं आपका इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पे फोकस करता है, जैसे इनकम ऑफ अ पर्सन, आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, नॉट ऑल फर्म्स, आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, प्राइस ऑफ अ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वाइल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इट बेसिकली फोकसेस ऑन द ओवरऑल एग्रीगेट्स एंड एवरेज। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एग्रीकल्चर के अंदर वीड कैटेगरी पे फोकस नहीं करेगी, ये पूरे का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेगा, पूरा का पूरा इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस करेगा, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर पे फोकस करेगा, और फिर इन तीनों का मिला के एग्रीगेट निकालेगा। सो दीज नेशनल इनकम एंड जीडीपी क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक के टूल्स है ना आपके। तो these tools are nothing but, यानी जो the tools of macroeconomic is nothing but the aggregate of overall economic situation of the country and not of a particular area, not of a particular industry, not of a particular person. This is about the economy of the whole country. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। माइक्रो में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पे फोकस रखते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति की आय, किसी भी उद्योग का क्या आउटपुट आ रहा है, क्या उत्पाद हो रहा है उसका। ठीक है, देन आपका किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी उत्पाद की ये सूची की क्या प्राइस है। ठीक है, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखते हैं, जबकि हम मैक्रो में इन सब का एग्रीगेट निकालते हैं। जो भी हम माइक्रो में पढ़ रहे हैं ना उनका एग्रीगेट आपका मैक्रो होता है। ठीक है, तो माइक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होता है? डिमांड को क्या बोलोगे? मांग। डिमांड को क्या बोलोगे? मांग, है ना। मांग कितनी है? तो जब हम डिमांड को इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन करेंगे ना, तो हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग, मतलब जो इंडिविजुअल चाह रहा है और उसको एंड एबल, और उसकी कैपेसिटी भी है उसको बाय करने का। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दिस इज नोन एज डिमांड। सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू बाय। दो ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विलिंग, जबरदस्ती तो डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते ना, डिमांड तो आपको उनकी कैपेसिटी, उनकी पर कैपिटा इनकम वगैरह बढ़ा के करनी पड़ेगी। भाई जब भी गवर्नमेंट को डिमांड क्रिएट करनी होती है तो कैसे करती है? कैसे करती है? डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज कर देती है ना, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज कर देती है, राइट। क्या कर देती है? डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज कर देती है। जैसे रिसेंटली कोरोना के टाइम्स में डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो इस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? एलटीसी स्कीम लेके आया। मतलब जो भी आपका लीव ट्रेवल कंपेंसेशन होता है, लीव ट्रेवल अलाउंस, एलटीए भी बोलते हैं इसको, लीव ट्रेवल अलाउंस या फिर लीव ट्रेवल ये कंपनसेशन, इसको इन्होंने बोला कि आप इसमें जितना भी आपको इक्विवेलेंट पैसा मिलता है आप उतना परचेज कर सकते हो, क्योंकि घूमने तो जा नहीं रहे कोरोना के टाइम पे, और वो बिल आप हमें दे दो, हम उससे आपको कंपनसेशन कर देंगे। मतलब जो भी आप इक्विवेलेंट अमाउंट का परचेज कर रहे हो वो आप क्लेम कर सकते हो एलटीसी स्कीम के तहत। ये एलटीसी और एलटीए बेसिकली क्या है? कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी प्रोवाइड किया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी अपने अपने जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये स्कीम प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो डिमांड का मेन 3 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट इज विलिंग, देन उसे परचेज करने की कैपेसिटी यानी पैसा, देन उस जो पर्टिकुलर प्राइस है उस पे। ठीक है, देन दैट इज नोन एज योर डिमांड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे सिंगल सिंपल वर्ड्स को भी डिफाइन करने के आप पैरामीटर्स ढूंढ लो, किन किन पैरामीटर्स पे आप इन सब चीजों को डिफाइन करोगे। ठीक है, देन आता है आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से ना डिमांड कर्व का मतलब होता है कि डिमांड और मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। से यहाँ से आप समझो
कि इनिशियली जो प्राइस था प्रोडक्ट का वो 40 रुपीज था, ठीक है। बनाना का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बनाना। बनाना क्या है, 50 रुपए के 12 बनाना मिल रहे हैं, ठीक है। 50 रुपए के 12 बनाना मिल रहे हैं। अब इनकी जब प्राइस, इसका प्राइस हो गया 40, मतलब अब 40 के 12 मिल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे डिमांड D1 है और यहाँ पे डिमांड अगर D2 है, तो D1 ज्यादा होगी या कम होगा? ऑब्वियसली D2 ज्यादा होगा ना, डिमांड 2 ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। क्वांटिटी डिमांडेड को हम QD से रेफर करते हैं। सो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, वो प्राइस के साथ इनवर्सली रिलेशन रखता है, इनवर्स रिलेशन रखता है। मतलब प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट डिमांड कर्व का, ठीक है। तो अब आप यहां से देखो, जो आपका जब 50 रुपए की कॉस्ट थी बनाना की, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 12, ठीक है। 12 लोग उसको खरीद रहे थे। जब 50 के 12 मिल रहे थे, 12 लोग उसको खरीद रहे थे। अब जैसे ही क्वांटिटी 40 हो गई, जैसे ही प्राइस 40 गिर गया, तो अब उसको 14 लोग खरीदने लगे। कितने लोग खरीदने लगे? 14 लोग खरीद। पहले 50 के 12 मिल रहे थे, ठीक है, फिर 40 के 12 मिलने लगे। तो पहले कितने लोग खरीद रहे थे इसको? चलो यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे, 13 लोग खरीद रहे थे, ठीक है। अब कितने लोग खरीद रहे हैं उसको? 15 लोग खरीद रहे हैं, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। प्राइस आपका डिक्रीज हो गया और क्वांटिटी डिमांडिंग आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जैसे ही हमारा प्राइस रिड्यूस हुआ, हमारा क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो इसका ग्राफ आप देखोगे, ग्राफ हमेशा इन स्लोपिंग लाइन बनेगी, यानी दिस टाइप ऑफ लाइन बनेगी हमेशा, ठीक है। जैसे जैसे आपका क्वांटिटी प्राइस गिरता जाएगा, क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना, क्लियर है ना। जैसे जैसे आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक। देन व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? इसी डिमांड कर्व से एक लॉ निकलता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जैसे कि जैसे जैसे ही आपका प्राइस डिक्रीज होगा, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। और इसी का वाइस वर्सा चलता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्राइस भी उस चीज का घटता जाएगा, ठीक है। दिस इज योर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। बट कंडीशन यहाँ पे ये रहती है कि बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, जैसे कि इनकम। मतलब इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कंसीडर किया जाएगा, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है ना। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बताया है कि जैसे जैसे हमारा, सपोज यहाँ पे देखो आप लोग कि प्राइस कांस्टेंट है अगर हमारा और डिमांड बढ़ रही है, तो आपका जो ये है, आपका जो आपको कर्व है वो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट होगा या नहीं होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना। यानी इसमें क्या हो रहा है, आपका सेम प्राइस, अगर आपका प्राइस घट भी गया, सपोज प्राइस घट गया आपका, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? खुद बताओ मेरे को, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी आपका? ये प्राइस घट गया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो हमारा कर्व किधर की तरफ शिफ्ट हुआ? कर्व किधर की तरफ शिफ्ट हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट हुआ ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रीलिम्स 2013 में। प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि जब भी आपका डिमांड बढ़ती है तो कर्व किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो ये आपका हमेशा याद रखना, देयर विल ऑलवेज बी द राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से आप लोगों को? राइटवर्ड शिफ्ट होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कम हो गया और डिमांड आपकी बढ़ गई, तो दिस रिलेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक।
देन बट इंपॉर्टेंट ये रखना कि इनकम को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, बाकी क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के अलावा जितने भी पैरामीटर्स है ना सबको हमें यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है भाई, अभी हमने इनकम कांस्टेंट रख लिया, अब मैं यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रखता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस को कांस्टेंट रखता हूँ और आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन बनेगा। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इंक्रीज होगा नहीं होगा, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। सो देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम और डिमांड में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा आपका इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। क्या रहती है, इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। ठीक है ना, क्लियर है, इनवर्स रिलेशनशिप रहते हैं, याद रखना इनकम और डिमांड में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगी और आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा और हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ग्राफ बनेगा स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है, यहाँ ग्राफ कैसा बना है आपका, स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड। यहाँ ग्राफ कैसा बना है आपका, स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे ही आपका इनकम बढ़ी, जैसी आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी बढ़ेगी। और प्राइस में क्या होगा आपका, प्राइस में क्या होगा आपका, ब्लू वाला प्राइस का है। ठीक है, प्राइस जैसी ये सपोज ये ओरिजिनल प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, इतना है। अब हमारा प्राइस घट गया, क्या हो गया, प्राइस हमारा घट गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दिस वाज द प्राइस पी, दिस वाज प्राइस P1। ठीक है, अब जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज होगा आपका, यानी प्राइस P2 हो गया, तो क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। ठीक है, ये आपका Q क्वांटिटी है, ये आपकी Q1 क्वांटिटी है, ये आपकी Q2 क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट आप लोगों को। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इनकम में हमेशा जो स्लोप होता है वो हमेशा अपवर्ड की तरफ जाता है, और जो आपका ये आपका इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन है, जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के केस में जो स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ कि किन किन पैरामीटर्स पे आपका डिमांड डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिमांड आपका डिपेंड करेगा। तो पहला हमने देखा प्राइस, दूसरा देखा इनकम, तीसरा हमने देखा प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब दो टाइप के मैं गुड्स बता रहा हूं आपको अभी, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, जैसे एग्जांपल मैंने आपका टी एंड कॉफी लिया है, क्या लिया है, टी और कॉफी लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसी ही कॉफी की प्राइस बढ़ेगी डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी, मतलब जब एक का प्राइस बढ़ेगा, मतलब यहां से देखो ये प्राइस पी है, ये ओरिजिनल प्राइस है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड टी की है, किसकी है, ये चाय की है, टी, और ये जो प्राइस है ये कॉफी का है। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज हुआ कॉफी का, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी तो बढ़ जाएगी चाय की, तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Q2 एंड Q1, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट और डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट के बिना दूसरे प्रोडक्ट का कोई भी यूज नहीं है, जैसे कार के बिना पेट्रोल का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, और पेट्रोल के बिना कार का कोई भी यूज नहीं है, तो एक दूसरे के प्राइस का फर्क दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ेगा। मतलब अगर पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो कार की बिक्री कम हो जाएगी, यानी देयर इज इनवर्स रिलेशन।
देयर इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यहां से आप लोग मुझे ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ अपनी अपनी नोटबुक में। दिस इज प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार। ये ओरिजिनल कंडीशन है P और Q के बीच में। अब मैंने बोला पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया आपका, जब पेट्रोल का प्राइस आपका बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार ज्यादा होगी या कम होगी? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो जाएगी ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? जैसी पेट्रोल का प्राइस बढ़ा वैसी कार की क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, देन कम्स अदर फैक्टर्स। और क्या क्या फैक्टर्स हैं? चेंज इन वेदर, बिल्कुल है चेंज इन, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी एग्जांपल लेंगे, भाई रेनी सीजन में क्या होता है? बेसन की डिमांड बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती? बढ़ जाती है। क्यों बन जाती है? पकौड़े बनते हैं इससे। ठीक है, जलेबी बनती है, जलेबी भी शायद आपका उससे ही बनती है ना, बेसन से। आई एम नॉट श्योर जलेबी किससे बनती है, बेसन से ही बनती है शायद ये भी। ठीक है, रेनी सीजन में ये सब डिमांड बढ़ जाती है ना, तो वेदर का भी फर्क पड़ता है। विंटर्स में डिमांड बढ़ जाती है आपकी। समर्स में क्या होता है आपकी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, और अदर बेवरेजेस की डिमांड बढ़ जाती है आपकी, बढ़ जाती है। आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है आपकी, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। तो चेंज इन वेदर का भी फर्क पड़ता है। देन कम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। एग्जांपल ऑनियन। अब मेरे को पता है कि आज से 10 दिन बाद ऑनियन के रेट बढ़ जाएंगे, ऑनियन रेट बढ़ जाएंगे आफ्टर 10 डेज। ठीक है, आफ्टर 10 डेज तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 से 10 दिन होंगे ना, इसमें प्याज की क्वांटिटी की डिमांड यानी डिमांड जो होगी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो बिकॉज यहाँ हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में देयर कैन बी अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? देयर कैन बी अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है? यहां से एग्जांपल मैंने आपको ओनियन का दे दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स द सप्लाई। सप्लाई को क्या बोलते हैं? आपकी खपत। हिंदी में क्या बोलते हैं? खपत बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो फर्म के द्वारा सेल किए जाते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब दैट आर अवेलेबल फॉर सेल बाय अवेलेबल या फिर ऑफर्ड बाय अवेलेबल या फिर ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ फर्म एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उसको बोलते हैं हम सप्लाई। ठीक है, तो जो हमारा सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशन रहता है ना, डिमांड के बीच में क्या रहता है हमारा? डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन रहता? डिमांड जब होती है, डिमांड के केस में क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ आ गया, देन प्राइस आपका यहाँ पे आ गया। जैसे ही हमारा ये ओरिजिनल प्राइस है P, दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी Q, जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ता था क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती थी। ठीक है, हो जाती थी Q1, राइट। और जैसे ही हमारा प्राइस घटता था वैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती थी? इंक्रीज हो जाती थी, दैट इज Q2। ठीक है, दैट इज Q2। जैसे ही हमारी प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी 1 हो गया, तो स्लोप कैसे बनेगा हमारा? स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड होगा। ठीक है, सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई में क्या होगा, जैसे ये ओरिजिनल प्राइस है P, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है Q, जैसे ही प्राइस बढ़ा, यहाँ पे है क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे क्या है आपकी? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड, यानी सप्लाई बाय अ फर्म। भाई जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसमें फर्म को रेवेन्यू ज्यादा मिलने लगेगा ना। जब रेवेन्यू ज्यादा मिलने लगेगा तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो आपका ये QS आएगा, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। यानी जब प्राइस बढ़ा आपका क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गई, जब प्राइस घटा आपका तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी कम हो गई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो स्लोप कैसा बनेगा आपका? स्लोप बनेगा अपवर्ड, स्लोपिंग अपवर्ड, स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है, दिस इज स्लोपिंग अपवर्ड। क्लियर है यहां से ये कंसेप्ट? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इसमें।
देन कम्स द लॉ ऑफ सप्लाई। देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कहता कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड आपका घट जाएगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई इसका उल्टा बोलता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्राइस जैसी बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो अब यहाँ से कंसेप्ट समझो ऐसा क्यों होता है भाई। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ही तो कंपनी की मेन चीज होती है ना, तो वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है आपकी, ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा। सपोज वो एक यूनिट बना रहा है, प्राइस ऑफ अ यूनिट इज ₹10, कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना, तो ये प्राइस ऑफ अ यूनिट कितना है, 10 रुपए है, और क्वांटिटी प्रोड्यूस यानी क्वांटिटी सेल 100 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया। अब इन 100 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसके कितने लगे, 800 रुपए लगे। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में उसका लगा 8 रुपए, तो 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने लगे आपके, 800 रुपए लगे। तो प्रॉफिट कितना रहा इसका, 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। सो अगर, जब एक बात बताओ, जब इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो, अगर वो सेलिंग प्राइस आपका 12 हो गया, अगर वो सेलिंग प्राइस 12 हो गया, तो इसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 800, 800, प्रॉफिट कितना हो गया, 400। तो ये क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा या नहीं कर देगा, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा ना। जब प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। अब सपोज टोटल कॉस्ट में, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब जो भी वो चीज बना रहा है, जो उसका रॉ मटेरियल से, जो उसका रॉ मटेरियल है, सपोज रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले 8 रुपए एक यूनिट लग रहा था, अब वो 10 रुपए यूनिट लग रहा है, कितना लग, अब वो 9 रुपए लग रहा है, सपोज 9 रुपए लग रहा है, ठीक है। तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितने लग गए, 900 रुपए लग गए। तो फायदा क्या होगा उसे, 1000 माइनस 900, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया ना। तो इस केस में क्या होगा आपका, जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई। अब दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लो, अभी यहाँ पे 10 रुपए का बिक रहा था, अब सपोज ये 9 रुपए का बिक रहा है आपका, तो 100 यूनिट कितने के बिकेंगे, 900 के बिकेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 8 यूनिट थी 100 रुपए की, 800। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था यहाँ पे उसको, 200 रुपए का हो रहा था, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सिर्फ 100 रुपए का हो रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो जब हमारा प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई, जब हमारा प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो गई। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सा बोलता है, जब जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तब तब क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, और जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। तो जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है तब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यानी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, प्रोडक्शन बढ़ा देता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी, तो क्या हो गया, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम में कंडीशन होती है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ इस चीज को। सपोज यहां से समझो इस चीज को, कोई प्रोडक्ट है, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो P है, ठीक है, और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है ओरिजिनल वो Q है, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहां से क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, यहां से प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया आपका, तो क्या होगा उस चीज में, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी ना। क्वांटिटी डिमांड क्या होगी आपकी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी,
जब प्राइस इंक्रीज हो गया किसी चीज का तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, घटेगी ना, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, घट गई। ठीक है, प्राइस बढ़ा, दिस इज द कैटेगरी ऑफ P1, राइट। देन P2 हो गया आपका जिसमें प्राइस आपका घटा, प्राइस क्या हो गया आपका, प्राइस P2 घट गया। तो इसमें क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना। तो डिमांड का स्लोप कैसा आएगा, ऐसा करके आएगा, ऐसा करके आएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका हो गया डिमांड का कर्व। ठीक है, अब यहीं पे सप्लाई का कर्व बनाता हूं मैं आप लोगों को, सप्लाई का कर्व बनाता हूं यहां से आपको, चलो भाई ब्लैक कलर से बना लेते हैं। अब ये बताओ मेरे को, जब प्राइस P है तो क्वांटिटी सप्लाई, सपोज क्वांटिटी सप्लाई उस टाइम पे हमारी रही है Q। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी ना, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए हैं तो इस केस में क्वांटिटी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी ना, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और जब प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई 2 क्वांटिटी सप्लाई 1। ठीक है, तो कर्व कैसे बनेगा आपका, कर्व कैसे बनेगा, कर्व आपका ऐसे बनेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी इक्वल रहती है। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई हेयर इस पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, इस पोजीशन पे रहेगा आपका क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये जो कंडीशन है ना आपकी, जो कंडीशन ए है ये वाली, ये क्या है आपका, सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, तो जो ये डिमांड और सप्लाई के बीच का रिलेशन है, इस कंडीशन में बताओ मेरे को क्या है, ए कंडीशन में क्या है आपका, ए कंडीशन में क्या है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, सप्लाई ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री बची रहेगी, इन्वेंट्री बची रहेगी यानी अनसोल्ड गुड्स रहेंगे आपके, अनसोल्ड गुड्स रहेंगे। तो ये जो ए कैटेगरी होगा, ये कैटेगरी होगी आपकी अनसोल्ड गुड्स की। ठीक है, यहां बोलेंगे अनसोल्ड गुड्स। अब बी वाला क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या है, QD, QD इज मोर देन QS, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे शॉर्टेज रहेगी। मार्केट मैकेनिज्म में एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इनविजिबल हैंड्स। सो दीज इनविजिबल हैंड्स इज द फ्री मार्केट प्रोसेस, फ्री मार्केट प्रोसेस, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर्स ये सब इस तरीके से एक्ट करते हैं कि मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब प्रोड्यूसर सिर्फ उतना प्रोड्यूस करेंगे जितनी डिमांड है, कंज्यूमर सिर्फ उतना कंज्यूम करेंगे जितनी उनकी नीड है, ट्रेडर सिर्फ उतना ट्रेड करेंगे जितनी डिमांड है। तो मतलब बेसिकली ये इतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना डिमांड है, या फिर ये उतना सप्लाई करेंगे जितनी डिमांड है, कंज्यूमर सिर्फ उतना लेंगे जितनी नीड है, ट्रेडर सिर्फ उतने ट्रेड करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट सेज दिस प्राइस 1 जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपका ओरिजिनल प्राइस पे वापस आएगा, और जो प्राइस 2 है वो ऑटोमेटिकली बढ़ के प्राइस नॉर्मल प्राइस के पास जाएगा। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज इनविजिबल हैंड्स एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज योर मार्केट मैकेनिज्म। So this invisible hand concept was given by Adam Smith in his book An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nation। ये एक इकोनॉमिक्स में लिखी हुई सबसे सर्वप्रथम किताब थी जिसको 1776 में लिखा गया था। ठीक है, देन आपका आता है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इन इक्विलिब्रियम। दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। देखो, इंक्रीज, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज, अभी हमने क्या पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा। मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर डिमांड में इंक्रीज होता है, अगर डिमांड में इंक्रीज होता है तो आपका इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज हम यहां से देखेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं नवरात्रों का। नवरात्रों में सपोज, नवरात्रों में आपका बनाना की, नवरात्रे आने वाले, नवरात्रों में क्या होता है, बनाना की डिमांड इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, बनाने की अब यह तो है नहीं कि भैया नवरात्रों से 10 दिन पहले आपने पेड़ लगा दिया तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए, सप्लाई तो उतनी रहेगी ना उसकी, बस डिमांड इंक्रीज हो जाएगी नवरात्रों के टाइम पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ई क्या है आपका, ई इज योर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पे, जैसी डिमांड इंक्रीज हुई तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ठीक है। जैसे मुझे एक चीज बताओ यहाँ से, जब प्राइस जो आपका जो इंक्रीज हुई डिमांड, ठीक है, इंक्रीज डिमांड हुई तो क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपकी प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांड, ये आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, क्या लॉ ऑफ सप्लाई भी चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको यहाँ से। सपोज दिस इज अ प्राइस P, ठीक है, दिस इज अ क्वांटिटी डिमांडेड इज Q, राइट। तो ये कर्व ऐसे बनेगा, यहाँ पे डिमांड कर्व कैसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा आपका। ठीक है, सप्लाई कर्व कहाँ जा रहा था आपका, सप्लाई कर्व इस पॉइंट पे मिल रहा था। सो दिस इज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब मैंने आपको बोला डिमांड बढ़ गई, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जब डिमांड इंक्रीज, दिस इज पॉइंट इज QD, ठीक है, तो यहां से आपका नया इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, यहां बनेगा नहीं बनेगा, यहां से क्या जाएगा आपका, दिस विल बी न्यू डिमांड कर्व, दिस विल बी न्यू डिमांड कर्व। ठीक है, ये आपका नया डिमांड कर्व होगा। सो दिस विल बी E1। ठीक है, सो कहां शिफ्टिंग किधर की तरफ हुई, शिफ्टिंग इज राइटवर्ड शिफ्टिंग, कहां हुई, राइटवर्ड शिफ्टिंग। अब आप पूछोगे कि भाई ये सप्लाई कर्व को क्यों नहीं चेंज करा, सप्लाई कर्व को इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं कि इनके इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। सप्लाई को तो हमने यहाँ कांस्टेंट रखा है ना, सप्लाई को हमने क्या रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, कहने का मतलब ये है आपका कि जब जब आपका डिमांड इंक्रीज होता है, जब जब डिमांड इंक्रीज होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कहां होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। देन जब डिमांड डिक्रीज होगी, जब डिमांड डिक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा आपका, जब डिमांड डिक्रीज होगी आपकी तो उसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे को, इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा भाई बताओ। जब डिमांड कम होगी, देखो दोबारा से देख लो इसको, मैं दोबारा से यहां बना देता हूं। ये सपोज आपका प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां से हमने ये बनाया, दिस इज द ओरिजिनल। ठीक है, सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड जाएगा आपका, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहाँ है आपका, यहाँ पे है। अब मेरे को ये बताओ, मैंने बोला कि डिमांड डिक्रीज हो गई आपकी, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो डिमांड तो आपका ये जब क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई तो प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं होगा आपका। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा आपका, नया कहाँ बना नया इक्विलिब्रियम आपका, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, E1 पे। सो जब डिमांड बढ़ी तो आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम है आपका, वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा आपका, देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसी आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी आपकी, जैसी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी वैसे ही आपका ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ये वाला पॉइंट आपका E1 अपनी लेफ्टवर्ड शिफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आप लोगों का। देन अब इंपैक्ट ऑफ सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, इंपैक्ट ऑफ सप्लाई अब यहाँ पे क्या रहेगा, डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, ये प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका
तो ये किधर की तरफ बन जाएगा आपका E1 इधर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। देन कम्स योर इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई। इम्पैक्ट कुछ नहीं करना, आपको लॉ ऑफ डिमांड लगाना है, लॉ ऑफ डिमांड लगाना है एंड लॉ ऑफ सप्लाई लगाना है। और इतना याद रखना है आप लोगों को बस कि जब इक्विलिब्रियम, जब भी डिमांड डिक्रीज होगी इक्विलिब्रियम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपका? क्लियर है ये वाला पॉइंट ना आपका? ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई। इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई आप खुद अपनी नोटबुक में सबसे पहले कर्व बनाओ, अपनी नोटबुक में कर्व बनाओ और कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई लगा देना। लॉ ऑफ सप्लाई लगा देना मतलब जब जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बस इतना आपको करना है, देन उसके बाद आपका डन हो जाएगा पूरा का पूरा। जब प्राइस P था और क्वांटिटी Q थी तो आपका इक्विलिब्रियम E था। जब आपका प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी आपकी बढ़ी, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका E1 की तरफ आ जाएगा और हमने डिमांड को कांस्टेंट रखा, ठीक है। ऐसे आपका ये जब आपकी सप्लाई, इम्पैक्ट ऑन सप्लाई, जब जैसी आपकी सप्लाई यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे क्या हुआ आपका सप्लाई इंक्रीज हुई है और यहाँ पे क्या हुआ है सप्लाई आपकी डिक्रीज हुई है। क्या हुआ है, सप्लाई यहाँ पे आपकी डिक्रीज हुई है। सप्लाई डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब, सप्लाई डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब क्या है आपका, ये किधर की तरफ मूव हुआ है आपका, देयर इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे आपका ये प्राइस यहाँ पे मैच हो रहा है ना, दिस इज द क्वांटिटी, तो अगेन इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है ना, ये E1 यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, E1 यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है। ये इधर की तरफ गया, सप्लाई इधर की तरफ जाएगा और ये डिमांड कर्व आपके इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे E1 इधर लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है ना आपका, ठीक है, राइट। तो हमेशा याद रखना, कहने का मतलब ये है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बट अपना कर्व बना लेना तो याद रहेगा। और थंब रूल मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूं, थंब रूल रहेगा, बस कर्व जब बनाओगे ना लॉ ऑफ डिमांड लगा लेना एक तो, ऑफ एंड दूसरा लॉ ऑफ सप्लाई लगा लेना, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, जो थंब रूल रहेगा ना वो थंब रूल ये रहेगा कि डिमांड एंड सप्लाई जब इंक्रीज होंगी और दूसरा जब डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज होंगी, तो उस केस में क्या होगा आपका, डिमांड और सप्लाई जब आपकी इंक्रीज होंगी ना उस केस में हमेशा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, कर्व बना के देख लेना। और जब डिमांड एंड सप्लाई घटेंगी आपकी तो हमेशा जो कर्व है वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये कॉमन चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ भी आपका बेसिकली जब डिक्रीज हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हुई है, ठीक है। देन आपका जब इंक्रीज हुआ है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई है, लेफ्ट कम डिक्रीज हुआ है, डिमांड कम हुई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हुई है। ऐसे ही आपका यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ है तो आपकी राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई है। तो हमेशा याद रखना जब जब इंक्रीज होगा हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जैसे जितना जब जब डिक्रीज होगा वैसे ही हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। सो आज यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। तो बेसिकली आज हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई देखा है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 15, उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। हम उसमें बेसिकली देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, हम उसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, और बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी रेट क्या होता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ये सब कंसेप्ट हम उसमें समझेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।